Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. And in connection to our previous lecture, after the introduction of the autonomic nervous system, today we will discuss about the cholinergic type of the nervous system, cholinergic neuron, and we will see the parasympathetic nervous system in detail. Let's have a look. Drugs affecting the autonomic nervous system are divided into two groups according to the type of the neuron involved in their mechanism of action. One is cholinergic drugs and second one is the adrenergic drugs. Cholinergic drugs act on the receptors that are activated by the acetylcholine neurotransmitter, and opposite adrenergic drugs act on those receptors which are stimulated by एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन. सो आपने दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स को. वो ड्रग्स जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करेंगी वो कोलिनर्जिक ड्रग्स कहलाएंगी. वो ड्रग्स जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करेंगी वो एड्रीनर्जिक ड्रग्स कहलाएंगी. वो ड्रग्स जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगी वो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहलाएंगी. वो ड्रग्स जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर कहलाएंगी. सिमिलरली वो ड्रग्स जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगी वो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट कहलाएंगी. एंड दोज ड्रग्स जो कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी वो एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स या एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट कहलाएंगी. ओके. कोलिनर्जिक को क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं टुडे एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोलिनर्जिक न्यूरॉन, you people can see that in case of cholinergic neuron, ganglia is concerned, so there is the neurotransmitter is acetylcholine and receptors are nicotinic. And in case of parasympathetic nervous system, postganglionic neurotransmitter is also acetylcholine, but the receptors are muscarinic receptors here. So these are those locations, I mean that the nicotinic receptors at both the ganglia as well as the muscarinic receptors at the adrenergic receptor, at the muscarinic receptors at the effector organs, all they use the acetylcholine. Moreover, acetylcholine is also present at the skeletal muscles where the receptor are nicotinic, and acetylcholine is also at the nicotinic receptor of adrenal medulla. तो ये कोलिनर्जिक ड्रग्स इन तमाम जगहों पर अपना इफेक्ट दे सकती हैं क्योंकि यहाँ एसिटाइलकोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा है. इज दैट क्लियर? ओके. तो आइए देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमिशन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में कैसे होती है. देयर आर 6 important steps in case of cholinergic neuron or the cholinergic neurotransmission. Generally speaking, all the neurotransmitters follow this same mechanism. First of all, the synthesis of the neurotransmitter, that is the synthesis of acetylcholine. ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन है और कोलिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर यू कैन सी दैट कोलिन एज वेल एज सोडियम they enter and by the action of acetyl-CoA they form the acetylcholine. Then the second step is storage of this neurotransmitter acetylcholine, and acetylcholine within the neuron, within the cholinergic neuron, that is stored into the vesicles. At the time of the need, this is released into released outside from the neuron, whether it is the location of the ganglia or whether it is the location of the effector organs in case of the parasympathetic nervous system, या ये गैंग्लिया पर भी लोकेशन हो सकती है, रिलीज़ हो जाएगा. और यूजुअली ये रिलीज़ जो है वो कैल्शियम के इन्फ्लक्स से होती है. वेन एवर द कैल्शियम एंटर इनटू द न्यूरॉन, वेसिकल से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड. Then after release, this neurotransmitter will bind with the receptor. You can see here that will bind with the receptor. And the remaining neurotransmitter does not
remain left into the space, rather it will be degraded. So there will be the degradation of the acetylcholine, whether with the help of the enzyme or there could be uptake mechanism. The extra neurotransmitter is reuptake. It means that it enters back into the neuron, or there could be the degradation into the choline as well as acetate. And this choline will again recycle back into the neuron, where it will be involved in the synthesis of again the acetylcholine. So these 6 major steps you need to remember. They are synthesis of acetylcholine, then the synthesis, then the storage, then the release, then binding, then degradation, and then recycling. Okay, so this is the cholinergic neurotransmission or neurotransmission at cholinergic neurons. Okay, where the neurotransmitter is acetylcholine. Now the important points that you should remember, that choline is transported from extracellular fluid into the cytoplasm of cholinergic neuron by energy dependent carrier system that co-transports sodium, and that step can be inhibited by the drug hemicholine. Okay. Then the uptake of choline is rate limiting step in acetylcholine synthesis. So choline acetyltransferase is the enzyme that catalyzes the reaction of choline with coenzyme acetyl-CoA, and in this way the acetylcholine is formed. So acetyl-CoA is derived from the mitochondria and produced by the Krebs cycle as well as beta fatty acid oxidation जो होती है वहाँ से. Okay. देन द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आप डिवाइड कर सकते हैं इनको दो में, मस्करानिक रिसेप्टर्स एज वेल एज निकोटिनिक रिसेप्टर्स. एंड वी डिस्कस्ड दैट मस्करानिक रिसेप्टर्स की 5 सब टाइप्स हैं, M1, M2, M3, M4, M5. M1, M2, M3 रिसेप्टर्स फंक्शनली कैरेक्टराइज्ड कर लिए गए हैं, and these receptor in addition to binding to the acetylcholine also recognize the muscarine. और मस्करीन आपको पता है कि एक एल्कोलॉइड है जो कि प्रेजेंट होता है सर्टेन पॉइजनस मशरूम्स में. ओके, मस्करानिक रिसेप्टर्स की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है विच यू शुड रिमेंबर. और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपके ऑटोनॉमिक टाइप के ऑर्गन्स हैं ये वहीं पर लोकेटेड होते हैं, जिनमें M1 रिसेप्टर्स आपके गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में, M2 रिसेप्टर हार्ट के ऊपर स्मूथ मसल्स में, और M3 ब्लैडर में, एक्सोक्राइन ग्लैंड में और स्मूथ मसल्स में लोकेटेड होते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? सो M1, M2, M3 ये तीनों जो कि फंक्शनली कैरेक्टराइज्ड हैं आप ज़रूर याद रखें. M4 और M5 को कहा जाता है कि वो CNS में आइडेंटिफाई हुए हैं. एसिटाइलकोलिन सिग्नल ट्रांसडक्शन अगर आप M2 रिसेप्टर्स में देखें, एज वी डिस्कस दैट दे वर्क थ्रू द G प्रोटीन, और G प्रोटीन यहाँ पर GS टाइप होती है जो कि एडिनाइलेट साइक्लेज के ज़रिए काम करके रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन. And rest mechanism, you know that how it produces the biological effects. M1, M3 receptors, we already discussed they are also G protein receptor, but they are GQ type of the protein receptors, and they act through phospholipase C where they produce diacylglycerol DAG and inositol triphosphate IP3, which is also responsible for the protein phosphorylation and increased intracellular calcium level. And you know कि जब भी प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन होती है या इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लेवल्स बढ़ते हैं तो फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं या एक्शन प्रोड्यूस होते हैं. ओके, now see the nicotinic receptors. We discussed that nicotinic receptors, they are ligand type ion channel. Okay, ligand gated ion channel receptor होते हैं. They are also the transmembrane. You can see they are ligand gated. When any ligand binds, the channels will be open. There will be entry of the ions and they work through
the ion channels, okay, and they can be classified into two type, that is neuronal, जिसको हमने NN का नाम दिया, और एक वो है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर है यानी स्केलेटल मसल्स पे हैं, हमने उनको NM का नाम दिया है. तो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी NN निकोटिनिक न्यूरोनल है और NM निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर है. एंड द निकोटिनिक रिसेप्टर ऑफ ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, जो गैंग्लिया पर हैं, they differ from those of neuromuscular junction. For example, ganglionic receptor are selectively blocked by the hexamethonium, whereas neuromuscular junction receptor are specifically blocked by the tuberculin. ये डिफरेंस है यहाँ पर, जिसको आगे हम अभी स्केलेटल मसल्स को जब डिस्कस करेंगे तो वी विल हैव अ डिटेल ऑफ दीज टाइप ऑफ द ड्रग्स एंड द रिसेप्टर्स, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द NM and NN, that is why they are classified into two types. Okay, so far we discussed about the cholinergic receptors, their location, their mechanism, cholinergic neurotransmission. Now we will see the cholinergic drugs. What are cholinergic drugs? You can classify cholinergic drugs into cholinergic agonist as well as cholinergic antagonist. First we will discuss the cholinergic agonist. Because these drugs are the agonists, so you can call them as cholinomimetics. And because they are producing the effects just like that of the parasympathetic nervous system, so you can also called as parasympathomimetics. They are parasympathomimetic because they are mimicking the effect of parasympathetic nervous system, or they are mimicking the effects of the acetylcholine, so you can called them as cholinomimetic as well as parasympathomimetic. Okay, so these drugs that produce action similar to acetylcholine either by directly or indirectly interacting with cholinergic receptor, or either by increasing the availability of the acetylcholine, जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज हैं इनको भी हम देखेंगे, उनमें आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. आप ये देखें कि डायरेक्ट एक्टिंग वो है यानी जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं. यू हैव द मेन ड्रग जो उसका न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन, बेथानिकोल, कार्बाकोल, सेविमेलिन, पाइलोकार्पिन. इनडायरेक्टिंग एक्टिंग वो हैं जो इनडायरेक्टली एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को बढ़ा रही हैं, यानी उनके रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट नहीं करी, बल्कि जो एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन में एंजाइम इन्वॉल्व है, एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज, उसको ब्लॉक कर रही हैं. तो एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी, एज ए रिज़ल्ट एसिटाइलकोलिन के लेवल बढ़ेंगे. उनमें रिवर्सिबल भी हैं और इरिवर्सिबल भी हैं. इरिवर्सिबल में इकोथायोफेट याद रखें, और इनडायरेक्ट एक्टिंग जो कि रिवर्सिबल हैं, देयर आर सो मैनी ड्रग, एम्बिनोमियम एंड डेमिकारियम, डोनाजेपिल, एड्रोफोनियम, गैलेंटामाइन, नियोस्टिगमीन, फाइसोस्टिगमीन, पायरिडोस्टिगमीन, रिवर्स्टिगमीन, टेक्राइन. ठीक है, और एक हमारे पास वो एजेंट है जो एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज की रीएक्टिवेशन कराता है, वो हमारे पास है बेसिकली पैम, जिसे आप प्रेलिडोक्साइन भी कहते हैं. ओके, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वो हैं जो डायरेक्टली उनके रिसेप्टर्स को, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं. और इनमें आप देखें कि जो आपके पास कोलिन ईस्टर्स हैं जैसा कि कार्बाकॉल या बिथैनिकॉल, कुछ नेचुरल एक्टिंग ड्रग पाइलोकार्पिन है, और ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स का लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है एज कम्पेयर टू एसिटाइलकोलिन. Therapeutically useful, pilocarpine and bethanicol preferentially bind to the muscarinic receptor and are sometimes preferred as muscarinic agent, and these all are clinically useful drug. जबकि डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट जो हैं वो शो करते हैं लिटल स्पेसिफिटी इन देयर एक्शन, जिसकी वजह से इनका जो क्लिनिकल यूज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं है. और एसिटाइलकोलिन तो इटसेल्फ इतना ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है अगर हम उसको एडमिनिस्टर करें, इसीलिए उसके थेराप्यूटिक यूजेस हमारे पास जो एक्सोजेनस एसिटाइलकोलिन है वो नहीं है. ओके, सो इसको आप पढ़ लीजिएगा, और ये बुक में भी लिखा हुआ है, यहाँ मैंने भी डाल दिया है. एसिटाइलकोलिन वही बात जो मैंने आपसे डिस्कस की कि कोई इंपॉर्टेंस इसकी थेराप्यूटिकली नहीं है,
इनके एक्शन वही होंगे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के होंगे, यानी डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, देन डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। और किन मैकेनिज्म से ये काम कर रहा है प्लीज़ इसको पढ़ लें। ये वही बातें हैं। अदर एक्शंस में आरजीआई ट्रैक में डेफिनेटली स्टिमुलेट करेगा मोटिलिटी और सीक्रीशंस को। आई में आपको पता है कि एसिटाइलकोलिन जो है ये मियोसिस कॉज करवाएगा। इसी तरह से यहाँ बेथानिकॉल के मैंने एक्शंस लिख दिए हैं, आप बेथानिकॉल को यहाँ से पढ़ लीजिए। इसके मेजर एक्शन क्या हैं स्मूथ मसल्स के ऊपर, और डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है मस्करानिक रिसेप्टर्स को, और यूरिन की एक्सपल्जन में भी इम्पॉर्टेंट है। थेराप्यूटिक एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, न्यूरोजेनिक एटॉनिक के अंदर और मेगाकोलोन के अंदर एडवर्स इफेक्ट्स भी यहाँ मेंशन्ड हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, प्लीज़ गो थ्रू इट। ओके, देन कार्बाकॉल, कार्बामाइलकोलिन इसे कहा जाता है, इसके बारे में भी मैंने लिख दिया है। थेराप्यूटिक यूजेस आई हैव आल्सो मेंशन्ड, एडवर्स इफेक्ट्स आई हैव आल्सो मेंशन्ड। इनके एक्शंस देख लें, कार्डियोवैस्कुलर और जीआईटी के ऊपर हैं, वही हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज़ गो थ्रू इट। पिलोकार्पिन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज ग्लूकोमा में है और टर्शरी अमाइन है, एक अल्कलॉइड है। ये एसिटाइलकोलिन के मुकाबले में इट इज़ फार लेस पोटेंट, बट इट इज़ अनचार्ज एंड पेनिट्रेट इनटू द सीएनएस एट थेराप्यूटिक डोजेस एंड मस्करानिक एक्टिविटी है इसकी, ऑफ्थेल्मोलॉजी में इसका रोल है। ग्लूकोमा के अंदर ये यूज़ होता है और आपने चेक करना है कि व्हाट इज़ क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा एंड व्हाट इज़ ओपन एंगल ग्लूकोमा, व्हाट इज़ द डिफरेंस। ओके, इनके एक्शंस सारे डिटेल में मैंने यहाँ डाल दिए हैं। ग्लूकोमा में ये किस वजह से यूज़ हो रहा है, क्या इसके एक्शन है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, क्योंकि सीएनएस में पेनिट्रेट करता है तो सीएनएस डिप्रेशन, सीएनएस की डिस्टर्बेंसेस में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, प्लीज़ गो थ्रू इट, इसमें कुछ ऐसी समझाने वाली बात नहीं है, ये आपके पढ़ने वाली बातें हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं, जिनको हम एंटीकोलिनिस्ट्रेज कहते हैं। और देखें, इसमें मैं आपको एक बात यहाँ समझाऊँ कि एसिटाइलकोलिन जो है, लेट मी एक्सप्लेन यू, ये एसिटाइलकोलिन है और एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन करवा देता है एक एंजाइम जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज, क्योंकि एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज जो इसकी डिग्रेडेशन करवा देता है एसीटेट में और कोलिन में। अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आप कोई, मैं इसको क्लियर करके दोबारा से लिखती हूँ, ये देखें, एसिटाइलकोलिन esterase is the enzyme which is responsible for degradation of acetylcholine. अब अगर मैं इस एंजाइम को ब्लॉक कर दूं तो एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी और एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ये इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट यही काम कर रहे हैं, ये एंटी कोलिन ईस्ट्रेजेस हैं, यानी एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज को ब्लॉक करते हैं, जिसके नतीजे में एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। और डेफिनेटली एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज करेंगे तो ये कोलिनोमिमेटिक टाइप एक्शन देंगे। अब वो ड्रग्स जो कि एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज को रिवर्सिबल ब्लॉक करती हैं, आपके पास उनमें जो एजेंट्स हैं उनमें फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन एंड गैलेंटामीन, रिवर्स्टिग्मीन और टेक्रीन शामिल है। ठीक है, जबकि इरिवर्सिबल में हमारे पास इकोथायोफेट है। तो ये देखिए, यहाँ भी वही मैकेनिज्म है कि एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन हो रही है एसीटेट और कोलिन में, और ये ड्रग्स ये ब्रेक डाउन नहीं होने देते और एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को इंक्रीज करते हैं, तो इंट्रासेल्युलर रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Now I have mentioned different agents with their effects, their actions. Physostigmine, please go through it. इनके actions क्या हैं, मस्करानिक हैं, निकोटिनिक हैं, इनके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं और आई में इनको कैसे रखा जाता है, जो स्पैज्म ऑफ एकोमोडेशन होता है उसमें और मियोसिस के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। और फाइसोस्टिग्मीन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोजेज। ठीक है, जैसे कि एट्रोपिन वगैरह की जो ओवरडोजेज होती हैं उनमें। यू कैन गो
थ्रू द एडवर्स इफ़ेक्ट्स, और ब्रेडिकार्डिया इसमें इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको देख लीजिए कि क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। पायरोडोस्टिगमीन और एम्बिनोनियम की इंपॉर्टेंट बातें, इनके एडवर्स इफेक्ट जो कि नियोस्टिगमीन से मिलते जुलते हैं, उसको देख लीजिए। डेमेकैरियम एक और कोलिनिस्ट्रेज इनहिबिटर है जो ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज़ होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स नियोस्टिगमीन जैसे ही हैं। एड्रोफोनियम को आप देख लें, और एड्रोफोनियम जो है वो ख़ास तौर पर माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो बहुत शॉर्ट है, 5 मिनट है। तो इसको हम ये देकर चेक करते हैं कि माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और अगर हम एड्रोफोनियम देते हैं और उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जस्ट 5 मिनट्स है, तो डेफिनेटली ये माइस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स को एलिविएट करता है, इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है। लेकिन अगर आपने ट्रीट करना है तो फिर हम उनको जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती हैं जैसे फाइसोस्टिगमीन वगैरह या नियोस्टिगमीन वो देते हैं। ठीक है। टैकरीन, डोनाजेपिल, रिवेस्टिगमीन और गैलेंटामीन, इनको भी देख लें। अल्जाइमर डिजीज़ में भी इनको देते हैं, क्योंकि अल्जाइमर में भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन की डेफिशिएंसी हो रही होती है। टैकरीन को भी अब अवेलेबल कर दिया गया है, लेकिन इसका हेपेटोटॉक्सिसिटी अभी भी रिपोर्टेड है, इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है। इरिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंथेटिक ऑर्गेनोफॉस्फेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ख़ास तौर पर पैराथायोन वगैरह जो है उनको एज ए इंसेक्टिसाइड मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ कर रहे होते हैं। ओके। तो इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट हैं, जिसमें डाइफ्लॉस है, इकोथायोफेट है, पैराथोइन, मेलाथोइन, डायाजिनोन, टेबुन, सैरिन, सोमन, ये गैसेस हैं। और कार्बामेट में हमारे पास कार्बारिल और प्रोपोक्स्यूर है। ठीक है। इकोथायोफेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है कि ये इनडायरेक्टली इसके साथ बाइंड करता है, कोवेलेंटली बाइंड करता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट है, कोवेलेंटली यहाँ बाइंड कर लेता है, और कोवेलेंटली जब बाइंड करता है तो परमानेंटली बाइंड करता है, परमानेंटली उसको एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज को इनएक्टिवेट कर देता है अनटिल एंड अनलेस के नया एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज जो है वो सिंथेसाइज ना हो। डेट इज़ वाई ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये परमानेंटली ब्लॉक कर देगा एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज को। ठीक है। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसके बाद आप इसको कर सकें। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है डेट इज़ अबाउट द एजिंग, और एजिंग ये होती है कि जो अल्काइल ग्रुप यहाँ से, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है, आप देखें कि अगर ये अल्काइल ग्रुप लॉस हो जाए तो फिर हम उसको एजिंग कहते हैं। ठीक है। तो लॉस ऑफ एन अल्काइल ग्रुप विच इज़ कॉल्ड एजिंग मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द केमिकल रीएक्टिवेटर सच एज पैम टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन रिमेनिंग ड्रग एंड द एंजाइम, यानी एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज और ड्रग के दरमियान। लेकिन अगर ये एजिंग नहीं हुई, अभी अल्काइल ग्रुप का लॉस नहीं हुआ, तो आप पैम दे सकते हैं जो रीएक्टिवेटर है इस एंजाइम का। अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट वगैरह की टॉक्सिसिटी हो जाए और अभी एजिंग नहीं हुई है तो यू कैन एडमिनिस्टर द पैम। ठीक है। तो यहाँ आप इकोथायोफेट के एक्शंस और एडवर्स इफेक्ट्स को ज़रूर चेक कर लीजिए। और ये रीएक्टिवेशन जो कि मैं पैम की बात कर रही हूँ यहाँ पर, जो कि पैरालीडॉक्साइम है, ये रीएक्टिवेट कर सकता है, बट ओनली इन द केस इफ़ द एजिंग हैज़ नॉट बीन अकर्ड। एजिंग अगर हो गई तो फिर आपका पैम भी काम नहीं करेगा। जो न्यू एजेंट्स हैं विच प्रोड्यूस एजिंग ऑफ द एंजाइम कॉम्प्लेक्स विद इन सेकेंड, वहाँ पर पैम लेस इफेक्टिव है। पैम वीक एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर है, और हायर डोजेस में साइड इफेक्ट इसके एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर्स जैसे ही हैं। ओके। सो ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर हम CNS से कंपैरिजन करें तो इन माय ओपिनियन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से गो थ्रू करें, लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनें, समझें, और इन तमाम चीज़ों को गो थ्रू करके अच्छे से इनको डेली बेसिस पर पढ़ कर याद करने की कोशिश करें, और इनकी फिर एडवांस रिसर्च को भी ज़रूर फॉलो करें कि न्यूअर टारगेट्स क्या हैं। As you are the PhD candidate, so it's important to be research oriented and search out what kind of the research is going to be target these type of the agent or the neurotransmitter or the receptor. Okay students, take care and Allah Hafiz.